Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Mehreen Naz, and today my topic of discussion is blood pressure and its related terms. So, let's start with the blood and its function. Actually, we all know what is blood, what is the function of blood. Actually, blood is a transport medium. Blood actually is a liquid that is pumped by our heart and ultimately it transports the oxygen and nutrients throughout our body to every cell of the body. Blood provides the body cells with oxygen and removes carbon dioxide. अब body cells को जब blood transport करता है oxygen, then carbon dioxide उन cells में से remove कर लेता है, then blood हो जाता है deoxygenated because oxygen transport हो गया है. अब blood जाता है, blood enter होता है lungs में. The second line will better illustrate it. Blood absorbs oxygen from air in the lungs. Blood then enters into the lungs and then absorbs oxygen from the lungs and then become oxygenated again. It transports the oxygen to cells throughout the body. जब again oxygenate होता है फिर throughout the body oxygen जो है वो transport करता है and waste products और carbon dioxide cell से remove कर लेता है. और जब lungs में enter होता है तो ये waste product और carbon dioxide lungs को जो है वो transport करता है and then ये carbon dioxide जो है हमारी body से exhale होती है. इस तरह ये continuous process जो है ना वो चलता रहता है. So this is actually the function of blood. Actually, blood acts as a transport medium that transports the oxygen and nutrients to every cell of the body for its proper functioning. So in this slide, we will talk about the flow of blood. As you can see, the structure of the heart. Actually, what happens is this is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. All the blood from the upper parts of the body collected in the superior vena cava and all the blood from the lower part of the body collected in the inferior vena cava. Then from the superior vena cava as well as the inferior vena cava, the blood enters into the right atrium, and the blue color actually indicates the deoxygenated blood, that the blood is deoxygenated and the blood enters into the right atrium, that is the deoxygenated blood, and then this deoxygenated blood enters into the right ventricle from the right atrium. Then from the right ventricle the blood enters into the pulmonary artery, and the pulmonary artery, actually the word pulmonary is used for the lungs, and when blood enters into the pulmonary artery, it means this blood actually is going from the this artery to actually into the lungs. Pulmonary artery word indicates that the blood will go into the lungs. एंड आर्टरी जो बेसिकली होती है ना, वो हम लोग वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट से जब अवे जाता है ना, तो उसे हम लोग जिसके थ्रू अवे जाता है उसको हम आर्टरी का नाम देते हैं. लेकिन जो पल्मनरी जो आर्टरीज होती है ना, वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कंटेन करती हैं. लेकिन पल्मनरी आर्टरी के केस में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करिए, बिकॉज ब्लड ने ऑक्सीजनेट ही लंग्स में होना होता है. तो इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जब लंग्स में एंटर होगा, फॉर एग्जाम्पल के लंग्स है, लंग्स में एंटर हो गया ब्लड, देन लंग्स में ऑक्सीजन ऑलरेडी हम लोग कॉन्टिन्यूसली इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के वहां पे रिसोर्सेज हैं. अब जब ब्लड एंटर होगा लंग्स में, देन ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेट हो गया लंग्स में, एंड देन पल्मनरी वेन से, लंग्स से जो हमारे पास है, जो ब्लड एंटर होगा दोबारा हार्ट में, तो वो किसके थ्रू एंटर होगा? पल्मनरी वेन्स के थ्रू. ये पल्मनरी वेन्स है. देन ब्लड लंग्स से आया पल्मनरी वेन्स के थ्रू, पल्मनरी वेन्स के थ्रू देन ब्लड एंटर हुआ लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से देन ब्लड दोबारा एंटर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर हो गए, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा, देन ब्लड एंटर होगा एओर्टा में, एंड देन फिर अल्टीमेटली थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. एक्चुअली दिस इज द सर्कुलेशन जो हमारे पास ब्लड की है हार्ट में, तो वो ये सर्कुलेशन है. superior vena cava, inferior vena cava, then enters into the right atrium, then right ventricle, then enters into the pulmonary artery, then from the pulmonary artery enters into the lungs, then become oxygenated, then enters into the pulmonary veins, then from the pulmonary veins enter into the left atrium, then enters into the left ventricle, and then blood is pumped and then enters into the aorta, and ultimately it enters into the whole body, throughout the body, for its transport of oxygen and nutrients. So this is all about the flow of blood. We'll move towards the next slide, that is the cardiac output and stroke volume.
Actually, a cardiac output is the amount of blood ejected by ventricles in 1 minute. The amount of blood हमारे ventricles, particularly जो left ventricle है, वहाँ से ejection होती है blood की, जो throughout the body blood transport होता है. अब amount of blood जो ventricle से eject हो रही है in 1 minute, 1 minute के अंदर जितनी भी amount हमारे ventricles eject करते हैं, हम उसे cardiac output का नाम देते हैं. And the cardiac output equals to stroke volume multiplied by heart rate. अब stroke volume क्या है? Stroke volume is the amount of blood ejected by ventricles in one beat or one systole or one contraction. अब stroke volume हमारे पास वो amount होती है blood की जो ventricles यानी कि particularly left ventricles eject करते हैं in one beat या one systole या one contraction. हमारे पास systolic phase होता है, diastolic phase होता है. जब एक systole होती है, एक contraction होती है, सिर्फ उसके ड्यूरिंग जितना भी ब्लड इजेक्ट करते हैं हमारे वेंट्रिकल्स या एक बीट में, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम देते हैं. हम लोगों ने ये जो कार्डिक आउटपुट के फॉर्मूला लिखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड इन 1 बीट, और हार्ट रेट एक्चुअली इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट. हार्ट रेट हमारे पास वो होता है कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बीट्स जो है ना वो हार्ट कितनी टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है या कितना बार बीट्स करता है, तो वो हमारे पास हार्ट रेट होता है, और वो ऑलमोस्ट 1 मिनट के इक्वल होता है. 72 बीट्स होती है हमारे पास 1 मिनट में. तो वो हमारे पास हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 1 मिनट ही हमारे पास टाइम बनेगा जिसमें हमारे पास जो ब्लड है वो इजेक्ट होगा वेंट्रिकल से. दैट्स वाई दिस इज द फॉर्मूला कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट. Now stroke volume का पता चल गया, that is the amount of blood ejected by ventricles in one beat or one systole or one contraction, and the formula of stroke volume is equal to n diastolic volume minus n systolic volume. n diastolic volume minus n systolic volume. अब ये कैसे है? It will better understand. I illustrate it in this slide. N diastolic volume. Actually the word itself indicates that is the end of the diastolic phase पे जो volume accumulate होगा वो end diastolic volume होगा. अब diastolic phase हमारे पास होता है relaxation phase. ये ऐसा phase होता है जिसमें हमारे पास maximum filling होती है blood की ventricles में, क्योंकि हमारे ventricles relax हुए होते हैं, dilate हुए होते हैं. जब dilate होंगे, relax होंगे, तो जो हमारे पास left atrium है वहाँ से maximum blood आएगा, left ventricle में वो maximum filling होगी blood की. जब ब्लड की मैक्सिमम फिलिंग हो गया देन अल्टीमेटली क्या है कि जब हमारे पास ब्लड मैक्सिमम फिल हो गया है, अब डायस्टोलिक फेज कंप्लीट हुआ है, तो डायस्टोलिक फेज जब कंप्लीट हुआ है उसके एंड पे जितनी भी अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हुई है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है. It is the total amount of blood that is filled in ventricles at the end or completion of ventricular diastole. Ventricular diastole यानी कि जो diastolic phase है, ventricles का diastolic phase है, at the end पे या completion पे जितनी भी amount of blood fill हुई है ventricles में वो हमारे पास end diastolic volume आता है. And it is the amount that is filled in fully dilated ventricles. Obviously ventricles dilate करते हैं, then amount of blood जो है वो fill होगा. Then what is the end systolic volume? At this word systole, systole का मतलब होता है contraction. Systolic phase यानी कि contractility phase. Diastolic phase हमारे पास relaxation phase था, और systolic जो हमारे पास है वो contraction phase होता है. अब systolic phase जो है, अब वो जब systolic phase complete होगा then उसके end पे जितना volume रह जाएगा उसे हम end systolic volume का नाम देते हैं. और systolic phase में हमारे पास contraction होगी, जब ventricles contract करेंगे तो blood eject होगा, जब blood eject होगा तो blood eject होने के बाद जितनी amount of blood हमारे ventricles में रह जाएगी उसे हम end systolic volume का नाम देते हैं. It is the amount of blood that is remained or retained or left in ventricles at the end or completion of ventricular systole. ये ventricular systole जब हो गया कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड की इंजेक्शन हो गया, उसके बाद जितनी अमाउंट रिमेन रह गया, रिटेन रह गया, वेंट्रिकल्स में रह गई है, उसके ventricular systole के कंप्लीट होने के बाद वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है हमारे पास. एंड द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ ब्लड आफ्टर इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम वो हमारे पास क्या है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है. सो हम लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कि डायस्टोलिक वॉल्यूम में मैक्सिमम फिलिंग हो जाएगी. सिस्टोलिक वॉल्यूम वो है, वो आएगा ही तब जब हम लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो निकल जाएगा, अमाउंट इजेक्ट हो जाएगी. तो अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास वो अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाएगी जो इजेक्ट किया ब्लड ने, जो स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्म में ब्लड ने इजेक्ट किया. So the remaining percentage of blood after ejection fraction or stroke volume is called end systolic volume. So what is the ejection fraction?
एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है बंदा इन टर्मिनोलॉजी से, लेकिन यह है कि इनके एक एक वर्ड का डिफरेंस है। लाइक कार्डिक आउटपुट में अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट हुई है 1 मिनट में, स्ट्रोक वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ ब्लड जो इजेक्ट किया है वेंट्रिकल्स में 1 बीट में। अब इजेक्शन फ्रैक्शन भी स्ट्रोक वॉल्यूम की तरह ही है, लेकिन इसमें भी एक वर्ड का पर्टिकुलरली डिफरेंस है, दैट इज अमाउंट की जगह परसेंटेज का वर्ड यूज हुआ है। इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फील्ड ब्लड दैट इज इजेक्टेड इन ब्लड वेजल्स इन 1 बीट। अब ये परसेंटेज तो है, लेकिन टोटल फील्ड ब्लड की। अब जब वेंट्रिकुलर का डायस्टोलिक फेस आता है, यानी कि रिलैक्सेशन फेस आता है, मैक्सिमम फिलिंग हो जाती है ब्लड की, वो हमारे पास टोटल फील्ड ब्लड है। अब उस टोटल फील्ड ब्लड में से जब हमारे पास सिस्टोलिक फेस आता है, कॉन्ट्रैक्शन फेस आता है, तो जितना ब्लड इजेक्ट होता है उस टोटल फील्ड की ब्लड की जितनी परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्ट होगी ना, तो वो हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन आता है। ठीक है, अब इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना, उसको हम परसेंटेज में लेते हैं, और जितना हमारे पास टोटल फील्ड ब्लड होता है ना, उसको हम रेफरेंस और स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं। द टोटल फील्ड ब्लड इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड और रेफरेंस अमाउंट होती है हमारे पास। अब उस रेफरेंस अमाउंट को आप 100% कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी वो है, अब उसमें से जितनी ब्लड की अमाउंट इजेक्ट होगी उसके हिसाब से हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना हमारी इतनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ml ब्लड फिल हुआ था डायस्टोलिक फेस में, तो सिस्टोलिक फेस के बाद जो है वो 40 ml रह गया, और 60 ml जो है वो इजेक्ट हुआ है। जो 60 ml इजेक्ट हुआ है, इसका मतलब कि वो 60% उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन है। जितनी फिलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जितना ब्लड इजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसकी परसेंटेज निकाली है, चाहे वो 90 ml फिल हुआ चाहे वो 80 ml फिल हुआ है। तो वो जो हमारे लिए रेफरेंस है, हमने उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल लेनी है। और जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना इजेक्शन फ्रैक्शन की, ऑलमोस्ट 60% 65% तक होती है, लेकिन ये वेरी करती है। हर एक कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 55% तक है, कुछ जो है वो 60% तक, लेकिन ऑलमोस्ट 55% 60% तक जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग जो है ना हमें पता चलता है इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है पेशेंट की। और इजेक्शन फ्रैक्शन अगर पेशेंट की कम है, तो फिर उससे हमें अंदाजा होता है कि मे बी उसका सिस्टोलिक जो है ना प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं हो रही, ब्लड की इजेक्शन सही नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली इजेक्शन फ्रैक्शन कम आ रही होगी। इस तरह ये एक पैरामीटर है जिससे हम लोग को हार्ट का जो है ना वो मतलब पता चलता है कि हार्ट का क्या फंक्शन है, फंक्शन कर भी रहा है प्रॉपरली कि नहीं कर रहा। Then we will move towards the systemic vascular resistance. Actually, it is the important terminology, most important terminology that is related to the blood pressure. Because जब systemic vascular resistance ज़्यादा होती है ना, तो ultimately blood pressure ज़्यादा होता है। और हमारी जो anti hypertensive drugs होती है ना, वो basically इस जो है ना पैरामीटर को टारगेट कर रही होती हैं। उन्होंने सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी होती है, ताकि अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है ना उसको डिक्रीज कर सकें। अब सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस सेंट्रल वीनस प्रेशर डिवाइडेड बाय कार्डिक आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला है, बट नो नीड टू रिमेंबर इट, कोई इतना जरूरी नहीं है, जिसमें मैंने वैसे ही ऐसे लिख दिया ताकि आप लोग को जो हमें पता है मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास जो वो ब्लड प्रेशर है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, वीनस के ऊपर जितना प्रेशर पुट हो रहा है वो, और कार्डिक आउटपुट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब what is systemic vascular resistance? Systemic vascular resistance refers to the resistance to the blood flow offered by all of the systemic vasculature, excluding the pulmonary vasculature. pulmonary vasculature के अलावा जो systemic vasculature है, उस पे जो blood flow की वजह से resistance आ रही है, उसे हम systemic vascular resistance का नाम देते हैं। This is sometimes referred as total peripheral resistance. Total peripheral resistance का भी हम इसे नाम देते हैं। अब mechanisms that cause vasoconstriction increase systemic vascular resistance. इट्स वेरी कॉमन कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट कर गई हमारी आर्टरीज, तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड के जो है फ्लो, उसकी वजह से जो प्रेशर, जो रेजिस्टेंस आ रही है टू द ब्लड फ्लो कि वो आगे मूव कर रहा है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस आ रही है बिकॉज कंस्ट्रिक्ट कर गई है वेजल्स, तो वो ज्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी अल्टीमेटली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। And those mechanisms that cause vasodilation decrease systemic vascular resistance. और जब vasodilation होगी तो blood बहुत स्मूथली फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो ये होगा कि अल्टीमेट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना हमारे पास वो डिक्रीज कर जाएगी। और vasodilation जो है ना, इसीलिए हमारी मोस्ट ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती हैं वो vasodilation का मैकेनिज्म शो करती हैं, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए हमारे पास, ARBs हो गए। इस तरह जो vasodilation होती है तो अल्टीमेटली जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है, और ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इसको डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। देन हमारे पास सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय चेंजेस इन ब्लड वेसल डायमीटर
ऑब्वियसली डायमीटर पे भी डिपेंड करता है कि डायमीटर ज़्यादा होगा, जो वेजल है वो बड़ी होगी, जो है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो इजीली फ्लो कर जाएगा ब्लड, लेकिन डायमीटर कम होगा, वो छोटी होगी, वो कंस्ट्रिक्ट हुई होगी, तो फिर जो है ना अल्टीमेटली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। एंड चेंजेस इन ब्लड विस्कोसिटी ऑल्सो अफेक्ट सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ब्लड विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है कि ब्लड विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ब्लड जो है वो गाढ़ा होगा तो अल्टीमेटली जो प्रेशर है उसका आर्टरीज पे वो ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग एंटीप्लेटलेट एजेंट्स भी देते हैं उन लोगों को जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ये भी चांस होता है कि उनकी ब्लड विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए एंटीप्लेटलेट दिए जाते हैं ताकि उनकी जो ब्लड विस्कोसिटी है वो भी रिड्यूस की जा सके। एट द सेम टाइम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है उसकी रिडक्शन हो सके और एक ऑप्टिमम लेवल तक वो मेंटेन हो सके। तो ब्लड विस्कोसिटी जो है वो प्लेटलेट ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो अल्टीमेटली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ना उससे रिलेट कर रहे थे। मीन आर्टीरियल प्रेशर, दैट इज द ब्लड प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है हमारे पास वो है, मतलब डायस्टोलिक फेस है, मैक्सिमम फिलिंग होगी ब्लड की। अब फंक्शन में बेसिकली उन्होंने ये बताया कि फिलिंग हुई उसके बाद जो है उसकी फंक्शन दैट इज सिस्टोलिक फेस हुआ, इजेक्शन हुई, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास वो अमाउंट है जो इजेक्ट होगी। और हार्ट रेट के नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, अब वो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास कार्डियक आउटपुट बन जाएगी। कार्डियक आउटपुट वो अमाउंट है ब्लड की जो इजेक्ट होती है 1 मिनट में। और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है। तो कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है अल्टीमेटली वो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। हम इन दो पैरामीटर से उसको डिटर्मिन करते हैं ब्लड प्रेशर को, कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस से। So here is a picture that I put because it's very difficult to tell, otherwise बहुत मसला हो जाता है कि समझ नहीं आती, लेकिन pictures better illustrate कर जाती हैं। तो अपर पे आप देखेंगे that is systolic pressure। systolic pressure जो हमें contractility phase के दौरान होता है ना, जो pressure exert होता है, अब देखें is measured when the heart contracts। systolic pressure तब measure होता है जब heart contract करता है, heart जो pressure डालता है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इजेक्शन होगी, प्रेशर एओर्टा पे आएगा, जो वो प्रेशर आएगा उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हम पता है जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो एक हार्ट जो है एक साउंड आ रहा होता है, वो साउंड जब आ रहा होता है तो हम लोग उस साउंड के स्टार्ट होने पे हम लोग कहते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर है बंदे का, और जब वो साउंड एंड हो जाता है देन दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। वो साउंड एंड हो गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम मतलब हो गया और रिलैक्सेशन फेज में चला गया वो। तो वो जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो है इज मेजर्ड बिटवीन द बीट्स व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। ये वो प्रेशर है जब हम तब मेजर करते हैं जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में होता है, तो तब ये प्रेशर मेजर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है तब मेजर होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो तब मेजर होता है जब हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन फेज में होता है, बिटवीन द बीट्स व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। ओके, एंड इट्स वेजल शोन दैट इज नॉर्मल, कि आप देख सकते हैं कि इसका डायमीटर, इसका रेडियस भी ठीक है, और आराम से जो है ना यहाँ पे ब्लड सेल्स मूव कर रहे हैं। और ये प्री हाइपरटेंशन हमारे पास, इसे हम लोग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और प्री हाइपरटेंशन भी कहते हैं, कि यहाँ से डायमीटर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डिक्रीज होने लग गया और जो ब्लड वेजल है वो कंस्ट्रिक्ट होने लग गया। लेकिन अब आगे जाके जो ब्लड वेजल है वो ज्यादा ही कंस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम इसे हाइपरटेंशन का नाम दिया गया। अब वो जो ब्लड फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस आने लग गई है और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन की तरफ चला गया। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सम कैटेगरीज हैं ब्लड प्रेशर की। हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसे लेस देन 120 कंसिडर करें अगर सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक लेस देन 80 है, और एलिवेटेड जिसे हम प्री हाइपरटेंशन भी कहते हैं दैट इज 120 टू 129 में फॉल कर है, और लेस देन 80 ही हमारे पास डायस्टोलिक है। अगर 120 से 129 तक जा रहा है तो वो उस केस में कंसिडर करते हैं कि पेशेंट प्री हाइपरटेंशन और मे बी वो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। एंड देन हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन आती है, दैट इज 130 टू 139 mm मर्करी अगर हमारे पास है सिस्टोलिक तो वो स्टेज 1 है। एंड देन डायस्टोलिक 80 टू 89 अगर हमारे पास है देन वो भी स्टेज 1 में आ रहा है। और जो स्टेज 2 है वो 140 से ज्यादा अगर आ गया और 90 से ज्यादा डायस्टोलिक आ गया तो पेशेंट जो है वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन पे है, सॉरी स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे है। स्टेज 1 पे 130 टू 139 है और 80 टू 89 जो है ना हमारे पास डायस्टोलिक है। और स्टेज 1 में मोस्टली हम लोग जो है ना वो पेशेंट्स को मोनोथेरेपी पे रखते हैं, मोनोथेरेपी से पेशेंट जो है उनको रिलीफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे आते हैं, 140 से ज्यादा हो गया, वो 90 से ज्यादा हो गया, तो उसमें मोनोथेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाना पड़ता है पेशेंट को। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है उनको मोनोथेरेपी भी मतलब सूट कर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है ना उन्हें कॉम्बिनेशन थेरेपी ही जाती है स्टेज 2 में। और एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस है जो हम हाइपरटेंसिव
इमरजेंसी भी उसे बोलते हैं कि अगर हायर देन 180 हो गया और डायस्टोलिक हायर देन 120 हो गया देन जो है इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। देन आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है हमें भी उसे इन्फ्यूजन लगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसे टैबलेट वगैरह देके तो उसको ब्लड प्रेशर उसकी रिडक्शन हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी जो है वीडियो। उसके अलावा अगर इन केस कोई अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है मेरी स्पीड में, मेरे बोलने के अंदाज में या कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अमेंड कर सकूँ और इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर कोई टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं कि मैं उस पर बात करूं या मतलब आपका कोई फेवरेट टॉपिक है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।